Okay, so we were discussing about system commands and system calls. Okay, so system commands are the C programs, executables, C programs. System commands are written as C programs and they are intended to provide the higher level services by the operating system to the end user, and system calls, they are actually used to get to avail the lower level services provided by the operating system. And these system commands, these C programs, they are built on system calls. Okay, and system call is just like procedure call, but it is executed inside the kernel. Means you need not to include any header file for a system call, or you need not to code. The code will be executed from the kernel. Whenever there is a system call in your program, suppose open system call is there, okay, then some value is transferred into the accumulator, that is the interrupt number corresponding to open. If read is there, some other value is transferred into the accumulator. Okay, so some value is transferred into the accumulator according to the system call, and then software interrupt instruction will get executed. And when this software interrupt instruction gets executed, control goes from user space to kernel space at a predefined place, that is interrupt vector routine. Okay, now here it will be identified by interrupt vector routine that this interrupt is due to the system call open. By seeing the contents of the accumulator, OS comes to know that it is a software interrupt and that is due to open system call. So control goes to in kernel space itself. This is kernel space, this is user space. Okay. In kernel space, control goes to open routine. It will get executed and control will again come back to the user space, to the next line of the program. Okay, and in this manner only, this is prevented by the system, this is maintained by the system, this is guaranteed by the system, that a user can't execute his own code corresponding to system call. Means if we write it also, then also actually in the system call code, at least one privilege instruction will be there. At least one privilege instruction will be there. Uh, and that privilege instruction, the CPU will not execute. CPU will not execute in ordinary mode. Okay, CPU will execute privilege instruction in privilege mode only. And which instruction changes the mode of CPU to privilege mode? This software interrupt instruction. Okay, so it changes the mode of CPU to privilege mode, and then the code corresponding to system call can be executed because it contains certain privilege instruction. And we had also discussed why this provision is there. The user can't execute his own code corresponding to system call to prevent any harmful illegal access in using the resources. To prevent any harmful illegal access in using the resources. Proper use of resources, efficient use of resources, legal use of resources can be guaranteed only by the system, a multi-user system, a multi-programming system, if it does not allow a user to implement his own code corresponding to system call. If it does not allow to execute on the CPU, a user in user mode his own code on the CPU corresponding to system call.
Okay, that thing also we discussed in detail yesterday. So system call is a software interrupt instruction. System call, all the system call, they are software interrupts, and by using which actually we avail the services of the operating system. Actually, to avail the services of the operating system calls are there, and for a layman, for a end user, the programmers write some C programs so that the end users can avail the services of the operating system in a more user friendly manner. Okay, like copy program is written by some system programmer that he has used open, read, write, close system calls and given this copy executable to the for the end user. Okay, similarly, other many commands and many shells are there which are written by the system programmers using system call. But to avail the services of the operating system, the interface is system call. The actual interface is system call. Okay, lowest interface is system call. Any question? Any question or no? Amrit, Amor, no question. Everything is clear. So tell me this. जैसे कि कुछ privilege ordinary instructions तो आपको काफी सारे पता है क्योंकि हमने CSA कोर्स में काफी सारे ordinary instructions देखे हैं. ठीक है, privilege instruction जैसे कि setting the value of the timer. सेटिंग द वैल्यू ऑफ द सीपीयू टाइमर. टाइमर होता है ना एक हार्डवेयर, उसका वैल्यू सेट करना इज अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन क्योंकि उसका वैल्यू सेट कोई कर देगा. तो जैसे मल्टी यूजर सिस्टम में क्या होता है हमने पढ़ा है ना, स्विचिंग टेक्स प्लेस आफ्टर डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम. तो अगर यूजर प्रोसेस टाइमर का वैल्यू सेट कर सकता है तो एक P1 हमने ये प्रोविजन रखा हुआ है मल्टी यूजर सिस्टम में कि सीपीयू the P1 will be given CPU for 10 time units, then P2 will get the CPU, then P3 will get the CPU. So what happens actually when 10 time units finishes means here the timer value is 10, suppose initial value is 10 because we are giving each process 10 time units. Okay, so when it becomes 0 then it sends an interrupt. This timer sends an interrupt to the CPU and this is a hardware interrupt. This is system call is a software interrupt and this is a hardware interrupt. Okay, so on the interrupt pin CPU has an interrupt pin on which it receives this interrupt signal. Okay, and what CPU does, when this interrupt comes, that it changes its mode to privilege mode. It switches its mode to privilege mode and control goes to operating system again. Means when timer interrupt is there, whatever process is running on the CPU that will get stopped. जो भी instructions execute हो रहे हैं ना, that जिस भी process के, जैसे P1 के ही हम इस केस में देख रहे हैं, P1 के instructions execute हो रहे हैं. तो when at the time it gets this interrupt, the execution of P1 gets stopped. Okay, CPU changes its mode to privilege mode and control goes to same place, that is interrupt vector routine inside the operating system. This is kernel space है ना. This is kernel space and P1 is executing in user space in main memory. This is main memory. Okay, so here interrupt vector routine executes, OS executes this interrupt vector routine and it comes to know that it is a hardware interrupt. And why this hardware interrupt has come? It will identify this thing that the timer value is now 0. It is an interrupt from timer. Okay, and the OS will switch because the scheduling algorithm is also inside the OS. The scheduling, what scheduling we are doing, round robin.
This is round robin scheduling actually. Okay, for 10 minutes, this process will get the CPU. For 10 minutes, this process will get the CPU. So what OS does, its scheduler, it will invoke the scheduler. The interrupt vector routine will invoke the scheduler, and that scheduler will switch this process P2 on the CPU. This process P2 on the CPU. These processes are there in main memory. All the three processes are there in main memory. So it will switch process P2 on the CPU. Okay. Now again the value of timer, when it passes 10 minutes, again timer will give an interrupt, that is a hardware interrupt. Again CPU changes its mode to privileged mode. Again control goes to IVR. Again IVR identifies this thing that it is a hardware interrupt due to timer, and it has to invoke the scheduler. Scheduler will get invoked and it will switch the scheduler will switch process P3 on the CPU. Okay, so this actually, if we make this instruction setting the value of timer as an ordinary instruction, that a user process can set the value of timer, this hardware. Okay, then what will happen? Means when 10 minutes passes, what P1 will do? Suppose it is in a decremented way. When it becomes 1, P1 will again set it to 10. When again it becomes 1, it will again set it to 10. So the switching can't take place to P2 and P3. So it should be kept privileged. This instruction setting the value of timer should be kept privileged. Okay. Similarly, in your edition, I don't know, means I have to check. One unsolved question is there where certain instructions are written. Okay, and you are asked to specify this thing, that whether this instruction should be ordinary or privileged. This instruction should be ordinary or privileged. But I have kept that question in tutorial. ट्यूटोरियल असाइनमेंट में दूंगा आपको, सॉल्व दूंगा जिससे आप उसको पढ़ सको। तो एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें ये भी एक मेरे को याद था, सेटिंग द वैल्यू ऑफ टाइमर। तो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस आर प्रिविलेज्ड, लाइक सिस्टम कॉल कोड में कुछ ना कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जरूर होंगे। सेटिंग द वैल्यू ऑफ टाइमर इज अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन आप ऑलरेडी काफी ज्यादा जानते हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन ये ऑर्डिनरी होगा या प्रिविलेज्ड होगा? मतलब इट शुड बी ऑर्डिनरी और इट शुड बी प्रिविलेज्ड? ऑर्डिनरी। हु इज सेइंग ऑर्डिनरी? सर व्हाट इज योर नेम? प्रिविलेज्ड होना चाहिए सर। शुभम प्रिविलेज बोल रहा है, अमन बोल रहा है ऑर्डिनरी। नहीं सर, मैं प्रिविलेज्ड बोल रहा हूँ। कौन प्रिविलेज बोल रहा है? अमन प्रिविलेज बोल रहा है सर। अच्छा, अमन प्रिविलेज्ड बोल रहा है। अमन प्रिविलेज्ड होगा तो ये एग्जीक्यूट ही कैसे होगा? सीपीयू का मोड तो ऑर्डिनरी है ना इस टाइम। जब ये एग्जीक्यूट होगा तभी तो सीपीयू का मोड प्रिविलेज्ड होगा। अमन सर आपने कहा था कि सिस्टम कॉल्स जो होते हैं मतलब उन्हें सॉफ्टवेयर इंटरप्शन भी बोलते हैं, ऐसे कुछ। हाँ, तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, क्योंकि सिस्टम कॉल जब भी आएगा ना, रीड राइट कुछ भी आएगा, तो ये एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये तो ऑर्डिनरी है, आप सबको पता है कि कुछ वैल्यू एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होगा अकॉर्डिंग टू द सिस्टम कॉल, और फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा सीपीयू पे। वो सीपीयू का मोड प्रिविलेज करेगा, वो सीपीयू का मोड प्रिविलेज करेगा। तो ये प्रिविलेज होगा अगर, तो ये सीपीयू पे एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। तो इट शुड बी ऑर्डिनरी। क्यों? ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन ये ऑर्डिनरी होगा तो कोई भी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आगे का कोड भी एग्जीक्यूट कर लेगा प्रिविलेज मोड करके। अगर ये ऑर्डिनरी है तो ये तो एग्जीक्यूट कर ही सकते हो ना आप, और इसी से सीपीयू का मोड प्रिविलेज हो रहा है। तो क्या होगा फिर? तो आप सिस्टम कॉल का कोड ही, आगे का कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा ना आपका। आप खुद लिख लो सिस्टम कॉल का कोड, ये प्रिविलेज कर दो सीपीयू का मोड। ये ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन है क्योंकि,
और फिर अपना कोड भी एग्जीक्यूट कर लो सिस्टम कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रिविलेज मोड करके। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्यों? पॉसिबल क्यों नहीं है, वही तो पूछ रहा हूँ। कोई बोलना चाह रहा है जिसका आवाज नहीं आ रहा? शुभम? नहीं सर, मेरी आवाज ठीक है, मेरा क्लियर है, कोई और नहीं होगा। बताओ। हाँ आवाज तो ठीक है लेकिन बोलो तो सही। सर एक बार पार्डन कर दीजिए क्वेश्चन। अगर ये ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी है तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा सीपीयू पे, ठीक है, कर सकता हूं ना, तो प्रिविलेज कर दिया मोड, तो आगे के इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट कर लूंगा जो सिस्टम कॉल के कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिखे हुए हैं। मैं क्यों कर्नल का कोड यूज करूंगा ओपन का? क्या ऐसा हो सकता है कि ये ऑर्डिनरी होगा तो ये ऐसा कर सकते हैं हम? सॉरी, हाँ ऑर्डिनरी होगा तो ऑर्डिनरी तो है ही, प्रिविलेज तो हो ही नहीं सकता। ये प्रिविलेज होगा तो यही तो प्रिविलेज मोड कर रहा है सीपीयू का। हाँ सर, तो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी है होगा। तो इसके आगे हम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं क्या? क्योंकि प्रिविलेज मोड तो हो चुका है सीपीयू का। हाँ लिख सकते हैं सर इंस्ट्रक्शन। फिर तो हम जो जहां से डिस्कशन स्टार्ट हुआ वो सब कुछ भी काम का नहीं रहा। मतलब डिस्कशन क्या स्टार्ट हुआ था कि हम सिस्टम कॉल्स को एग्जीक्यूट ना कर पाए, क्यों ना कर पाए, क्यों ऐसा प्रोविजन रखा गया है। फिर हमने बोला ये हार्डवेयर सिस्टम इसको कैसे मेंटेन करता है, इस तरह से मेंटेन करता है, तो सारा मतलब एक लेक्चर बेकार हो गया ना बेटा। ये ऑर्डिनरी है लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगा दो चीजें एक साथ होंगी, बिकॉज इट इज इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, दोनों काम एक साथ होंगे। सीपीयू चेंजेस इट्स मोड फ्रॉम ऑर्डिनरी टू प्रिविलेज एंड कंट्रोल आल्सो, ये दिखाया हुआ है ना, कंट्रोल आल्सो गोज टू इंटरफैक्टर रूटीन इनसाइड द ओएस। तब यूजर स्पेस के पास कंट्रोल तभी आएगा जब वो पूरा रूटीन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो इट इज अ ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन। ओके। एंड सेटिंग द वैल्यू ऑफ टाइमर इज अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, ये तो अलग से ऐसे ही बता दिया, हाँ ठीक है। लेकिन खैर अभी हमें हार्डवेयर इंटरप्ट का बात भी करना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि द नेक्स्ट सिस्टम कॉल्स का डिस्कशन में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स, इंटरनल implementation of system calls also I discussed, okay. नाउ व्हाट इज बूटिंग? क्योंकि अब हार्डवेयर इंटरप्ट भी बताना है आपको, तो हम यहाँ से बूटिंग प्रोसेस थोड़ा सा। सर आपने जो अभी बताया एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम कॉल्स था, ये एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम कॉल्स हो गया, सिस्टम कमांड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, सिस्टम कॉल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, डुअल मोड सीपीयू ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, मतलब डेफिनेशन ऑफ ओएस डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए, और मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया है, और बाकी टाइप्स ऑफ ओएस बुक से कर लेंगे। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऑफ ओएस डिस्कस किया है, बाकी बुक से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में सिस्टम कमांड्स क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होती है, शेल का पर्पस क्या होता है, और डुअल मोड ऑफ सीपीयू ऑपरेशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि 8088 के बाद सब सीपीयूज में डुअल मोड सीपीयू ऑपरेशन है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर सिक्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, तो इट इज एसेंशियल। तो वही हमने डिस्कस कर लिया, डुअल मोड ऑफ सीपीयू ऑपरेशन भी। अब ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, सिस्टम कॉल इज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अभी हार्डवेयर इंटरप्ट वैसे देखा हमने थोड़ा बहुत टाइमर का एग्जांपल लेके, लेकिन वो थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो चीज डिस्कस करना है अबाउट बूटिंग। सो व्हाट इज बूटिंग? Starting up व्हाट इज बूटिंग बेटा? process. Starting a process.
अमोक बीजू स्टार्टिंग प्रोसेस। अमन गोला, आपको पता है व्हाट इज बूटिंग? सर मेरे को सर ये होता है लैपटॉप को स्टार्ट करना, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है उसे बूटिंग बोलते हैं। लैपटॉप स्टार्ट करते हैं तो हाँ सर, ओएस लोड होता है, लोड होता है तो वही उसे बूटिंग। बूटिंग कहते हैं। ठीक है, यस। और कोई कहना चाहता है कुछ? सर बायोस का स्टार्ट करने का प्रोसेस। कौन है भाई? विशेष, विशेष सिन्हा, जी सर। विशेष। यस सर। देखा, मैं आवाज से ही पहचानने लग गया। वाओ। पर कुछ दिनों में शक्ल देख लोगे आप, उससे पहचान लोगे। विशेष का कौन है? तो कोई हीरो है? हीरो है कि त्रिपाठी जी कौन हैं। है ये? पंकज त्रिपाठी। सर कालीन भैया हैं सर। चलो जो भी है, विशेष का तो शक्ल मुझे याद ही रहेगा हमेशा। ठीक है, विशेष बायोस को स्टार्ट करना बूटिंग कह रहे हैं। यस सर। चलो बायोस को तो छोड़ो, ये तो सब मान रहे होंगे क्लास में, अपनी क्लास में सबको पता होगा। टू लोड द ओएस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। क्यों? यही Yes, डेफिनेशन आपको पता है ना बूटिंग का, और करेक्ट है ये। व्हेन यू स्विच ऑन योर सिस्टम, the OS loads from secondary storage from the hard disk. OS is there, OS files are there on the disk ना। हमने बोला ना सब फाइल सिस्टम्स में पहला ब्लॉक क्या होता है बेटा? बूट ब्लॉक। सबसे पहला ब्लॉक मैंने सारे फाइल सिस्टम्स का बूट ब्लॉक कल भी बताया था ना। कोई भी फाइल सिस्टम हो तो एक्चुअली फर्स्ट सेक्टर पे ही OS फाइल्स होता है, वो लोड होती है मेन मेमोरी में। ठीक है, उसके स्टेप्स हैं अलग। लिनक्स के पूरे स्टेप्स हम बाद में देखेंगे। पूरे स्टेप्स अभी हम फाइल सिस्टम नहीं पढ़ रहे, हम लैब में देख लेंगे बूटिंग के सारे स्टेप्स। लेकिन हाँ, डेफिनेशन यही है कि टू लोड द ओएस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी। सर यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मतलब वो हार्ड डिस्क ना? हाँ, लोड ओएस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क पे ही ओएस रहता है फर्स्ट सेक्टर में। ठीक है, नहीं सॉरी, ओएस की कुछ फाइल्स रहती है। पूरे स्टेप्स बूटिंग के हम देखेंगे बाद में, लैब में देख लेंगे कभी, क्योंकि सिलेबस में क्या है, एंड में है। सिलेबस में एंड में है ना ये, वैसे तो पूरा फाइल सिस्टम का चैप्टर। लेकिन हाँ, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड चैप्टर में वो दिया हुआ, वो डिस्कस करना है अभी। और एक और चीज़ इंटरप्ट के बारे में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ठीक है, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड एज बूटिंग। अब बेटा ये ओएस लोड हो रहा है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, तो हम पहला लेक्चर जब किए थे तब बोले थे कि हार्ड डिस्क का ड्राइवर चाहिए। हार्ड डिस्क को यूज करने के लिए उसका ड्राइवर चाहिए होता है, कंट्रोलर चाहिए होता है, जो सर्किटरी है हार्ड डिस्क के साथ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एसोसिएटेड, और डिवाइस ड्राइवर चाहिए होता है, आईओ रूटीन। जो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? IO routines that gives the commands to the controller, and then only you can use this device through the controller, है ना? हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना शुभम? जी सर। तो शुभम, ये ड्राइवर तो ओएस का पार्ट है ना, तो ओएस तो मेन मेमोरी में अभी है ही नहीं। ओएस अभी मेन मेमोरी में है ही नहीं, तो कैसे ये लोड होगा? क्योंकि ड्राइवर नहीं है मेन मेमोरी में, तो ओएस लोड कैसे होगा हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी? सर बूटिंग। बूटिंग होगा कैसे? विशेष, सर कोई और टाइप का कंट्रोलर चाहिए होगा जो हार्ड डिस्क से मेमोरी में डाले। They use कंट्रोलर standardized तो drivers. सर्किटरी है, ये तो सर्किट है, ये तो है, ये भी है, Sir, ये it's भी है, ये standardized भी है, driver. ड्राइवर नहीं है। Standardized driver. So like one driver works for all hardware devices like that.
नहीं, हमें तो डिस्क का ड्राइवर चाहिए, कोई भी ड्राइवर नहीं है ना अभी तो, मेमोरी खाली। आपने स्विच ऑन किया है सिस्टम को, आपने स्विच ऑन किया, मेमोरी तो खाली है ना। रैम, Yes, sir. रैम जो है वो तो बिल्कुल क्या होता है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल रैम वॉलेटाइल होता है। Volatile. तो रैम तो एम्प्टी है ना। अब लोड कर रहे हो ओएस लोअर पार्ट ऑफ रैम में, ओएस सर जो है लोअर पार्ट ऑफ रैम में लोड होता है, डिस्क से लोअर पार्ट ऑफ रैम में लोड होता है। तो डिस्क का ड्राइवर चाहिए ना लोड करने के लिए। हम तो यही पढ़े थे पहले फर्स्ट लेक्चर में कि डिवाइस को यूज करने के लिए अच्छा, उसका ड्राइवर होना चाहिए। तो इस हार्ड डिस्क को यूज करने के लिए इसका ड्राइवर तो होना चाहिए, तभी तो हम इसको इससे लोड कर पाएंगे ओएस को। यस सर। सर बायोस में ड्राइवर होता है सर, मतलब एक्सीलेंट, कौन है लड़का? अमन। एक्सीलेंट अमन। बायोस जो है सबसे पहले जब आप स्विच ऑन करते हो सिस्टम को, कंट्रोल बायोस के पास जाता है। बायोस इज देयर, बायोस इज देयर ऑन द रोम। एक रोम चिप होता है, ठीक है। रोम जो है उस पे बायोस रहता है, इट इज नॉन वोलेटाइल, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है बायोस का? बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। तो ये जो आईओ रूटीन्स हैं, क्या? वो सॉरी एस फॉर सिस्टम होता है सर मेरे ख्याल से। नहीं, आप कह ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मेरे को पता है, यही है इंटरनेट पे, ठीक है। लेकिन मैं सर्विसेज इसलिए बोल रहा हूँ कि रूटीन्स, मतलब आईओ रूटीन्स, आईओ सिस्टम कह लो, चलो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में क्या है? आईओ सिस्टम मतलब आईओ रूटीन्स कोरस्पॉन्डिंग टू बेसिक डिवाइसेस, कोरस्पॉन्डिंग टू कीबोर्ड। सारे ड्राइवर्स नहीं है, सारे ड्राइवर्स नहीं है बायोस में, ठीक है ना। जो आपके प्रिमिटिव डिवाइसेस हैं, बेसिक डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनके ड्राइवर्स बायोस में है, ठीक है। तो दोज ड्राइवर्स विल गेट सिलेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल गोज टू रोम एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रोम बूट स्टेप रूटीन टेक्स प्लेस। रोम के अंदर एक एग्जीक्यूशन होता है रोम बूट स्टेप रूटीन का, ठीक है। Then control goes to the ROM, execution of ROM bootstrap routine takes place, and control goes to very first sector of the disk, very first sector of the disk, okay. And very first sector of the disk has the boot block. मतलब if multiple operating systems are there, then it goes to sector 0 where partition table is there. अगर मल्टीपल ओएस है तो सेक्टर 0 पे पार्टीशन टेबल रहता है सबसे पहले, ठीक है। तो पार्टीशन टेबल के अकॉर्डिंग आपका जो भी बूट लोडर है, कई बूट लोडर है, जैसे कि आपका ग्रब है, ठीक है, लीलो बूट है जो लिनक्स में होता है। तो यहाँ से जो है आप अपना ओएस सेलेक्ट कर सकते हो। इट आस्क्स द यूजर टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहां से कंट्रोल कहाँ जाएगा? टू द बूट ब्लॉक ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर मल्टीपल फाइल सिस्टम्स हैं, आपका विंडोज भी है और लिनक्स भी है, तो आप लिनक्स से बूटिंग कर रहे हो तो इट गोज टू द सेक्टर, बूट सेक्टर ऑफ लिनक्स। अगर आप विंडोज से सेलेक्ट करते हो बूटिंग के लिए तो इट गोज टू द boot sector of Windows. Okay, now we are considering, we will see in detail the steps of booting from Linux only. So we are considering only Linux here, that this RAM bootstrap routine will get loaded in main memory. Now this RAM bootstrap routine will loaded in main memory, that is the जिसको हम booting कहते हैं, आप कहते हो ना loading of operating system from secondary storage to main memory. So this RAM bootstrap routine is actually loaded. Okay, and then execution of RAM bootstrap routine takes place. So for loading the RAM bootstrap routine in main memory, actually we use this BIOS. Okay, we use this BIOS that is inside the ROM. Means inside the ROM bootstrap routine is there, basic input output, device drivers are there. Okay, so BIOS is inside the ROM, and these drivers are selected to load the RAM bootstrap routine in main memory, and then the various files are loaded. Various operating system files, they are loaded in main memory. Okay,
Now the detailed, if you want to go in detail, actually that is given in the file system chapter. In this second chapter, only this much is given, that these are the bootstrap programs, grub, lilo boot, and they are used. These programs are there on the first sector of the disk and they are used for booting. Okay. So OS loads in main memory. Okay. And ultimately what you will get after booting, what you will get? Shell you will get graphical user interface, और if you are using, अगर आपके पास UI सिस्टम है ही नहीं, पहले तो कमांड इंटरप्रेटर बेस्ड सिस्टम ही होते थे ना, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड सिस्टम ही होते थे. Yes, sir. Yes. तो what you will get? This shell you will get. Okay. So this shell हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. It is a user space program. Okay, OS loads in main memory, this booting starts, and when booting is over, you are with a user space program, that is shell. Okay, now control again goes to kernel space. अब जो है, once the booting is over, the OS goes into sleep state and it will await. Sir, हाँ सर एक चीज पूछनी है सर, ये शेल और कर्नल के बीच का डिफरेंस क्या होता है वैसे? शेल यूजर स्पेस है और कर्नल जो है, ये सारी कर्नल की फाइल्स लोड हुई अभी मेमोरी में. अभी जितनी फाइल्स बूटिंग में लोड हुई ना कर्नल में, सब कर्नल की फाइल्स लोड हुई, कर्नल प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए, उन्होंने और फाइल्स को लोड किया. तो कर्नल का काम है आपका, जैसे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के लिए जो भी रूटीन्स है वो मेमोरी में लोड हुए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो भी रूटीन्स है वो मेमोरी में लोड हुए, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए जो भी रूटीन्स है वो मेमोरी में लोड हुए. तो वो सब कर्नल है जो एक्चुअल ओएस का कोड है, जिसको सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, जो परफॉर्म करना है ओएस को, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, वो सब कर्नल के अंदर है, वो सब कर्नल के अंदर है. वो कैसे हम पढ़ेंगे सारे फंक्शन, एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे, एक एक, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर के बाद सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम कर्नल कैसे इन फंक्शंस को कर सकता है और लिनक्स कर्नल कैसे करता है, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है सर डेफिनेशन क्या है सर कर्नेल की? हाँ बेटा, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कर्नेल की? कर्नल इज अ कलेक्शन ऑफ ओएस रूटीन्स. ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स जो भी हैं, उनका जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ दोज रूटीन्स इज कॉल्ड एज अ कर्नल. ये ओएस के साथ इंटरफेस दिया है, ये ओएस के साथ इंटरफेस दिया है, लेकिन ये कर्नल का पार्ट नहीं है ये. सर, हाँ सर बूट रिकॉर्ड कर्नल के अंदर आता है क्या? बूट ग्रब प्रोग्राम जो है, बूट लोडर, वो कर्नल का पार्ट होगा, कर्नल की फाइल्स होंगी. ओके सर. हाँ, ग्रब आपको मतलब फाइल सिस्टम पे मिल जाएगा, ग्रब रहेगा फाइल सिस्टम पे, लेकिन वो कर्नल की फाइल्स है, मतलब कर्नल की फाइल्स है, वो लोड होंगी, क्योंकि बायोस यूज होगा ना, तो बूट के अंदर जो रूट डायरेक्टरी के अंदर बूट डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर आपको ग्रब मिलेगा बूट लोडर. लेकिन वो बूट लोडर मिलेगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि वो है डिस्क पे है. तो लेकिन वो सब कर्नल की फाइल्स है, मतलब कर्नल की फाइल्स कब, जब वो कर्नल स्पेस में चली गई, लोअर पार्ट ऑफ मेन मेमोरी में चली गई. तो हमें तो फाइल से ज्यादा मतलब नहीं, हमें प्रोसेसर से ज्यादा मतलब है. मेमोरी में हमें प्रोसेसर से मतलब है ना, डिस्क पे होती है फाइल्स, तो यहाँ तो प्रोसेस होते हैं. तो ये मेमोरी के लोअर पार्ट में कर्नल प्रोसेस सारे रहते हैं. ठीक है, सारे कर्नल प्रोसेस रहते हैं. जैसे कमांड हम करेंगे ps या ps-e, तो इससे सारे यूजर स्पेस प्रोसेस, ps-e, एक सेकेंड, ps shows you the processes owned by you, and ps-e also shows the user space processes only. कर्नल, चलो वो उसके कमांड में थोड़ा याद नहीं आ रहा. तो कर्नल प्रोसेस जो होंगे वो यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, ये
कमांड दिखाता है कि नहीं कर्नल प्रोसेस को, वो एक बार करके देखना पड़ेगा लैब में, ठीक है। तो ये सारे कर्नल प्रोसेस है। अब कर्नल प्रोसेस से आप शेल पे आ गए बूटिंग ओवर होने के बाद। शेल इज अ यूजर स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि आप अपनी खुद की शेल भी यूज कर सकते हो। एंड कर्नल गोज इनटू स्लीप स्टेट, कर्नल गोज इनटू स्लीप स्टेट and it will awake only when there is some interrupt. अब अगेन कर्नल के पास कंट्रोल तभी जाएगा आइदर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो, इस यूजर स्पेस प्रोसेस से शेल से कर्नल के पास कंट्रोल तभी जाएगा आइदर इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ड्यू टू सिस्टम कॉल और इन केस ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट फ्रॉम एनी IO डिवाइस। अब ये इंटरप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम वापस से। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो आपको पता ही है, मतलब जैसे आप शेल पे आपने लिखा CP, जैसे आप लिख रहे हो एडिट फाइल 1, जी एडिट कर देता हूँ, जी एडिट फाइल 1, ठीक है, या पिको फाइल 1, ठीक है। तो पिको एडिटर ओपन होगा या जी एडिट ओपन होगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ सिस्टम प्रोग्राम। पिको, जी एडिट, दे आर सिस्टम प्रोग्राम्स। उसके अंदर कोई ना कोई सिस्टम कॉल रहेगा। तो जैसे ही वो सिस्टम कॉल आएगा वैसे ही कर्नल के पास कंट्रोल जाएगा, जी एडिट का कोड एग्जीक्यूट होगा या पिको का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगेन यूजर स्पेस के पास कंट्रोल आ जाएगा। फिर बाद में आप फाइल 1 में कुछ भी लिख रहे हो, देन कर्नल इज देयर इन द स्लीप स्टेट, ठीक है ना। मतलब इट विल अवेक ओनली इन केस ऑफ इंटरप्ट, जब तक कोई इंटरप्ट नहीं आएगा इट विल रिमेन इन द स्लीप स्टेट। तो आइदर सॉफ्टवेयर, मतलब जो कर्नल है मतलब एक गेट कीपर के टाइप का, मतलब हार्डवेयर प्रोग्राम्स के बीच में। गेट कीपर तो मैंने पता नहीं, लेकिन इट इज कॉल्ड एज अ इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम, इसलिए इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। कर्नल इज आल्सो कॉल्ड एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम, means only in case of interrupt driven program or event driven program, when some event occurs or some interrupt occurs, only then kernel will wake up. Okay, it will awake only due to interrupts, due to events, either software interrupts or hardware interrupts. Okay, so whenever means its services are required, the software interrupts किस लिए होते हैं? To get the services of the operating system. और हार्डवेयर इंटरप्ट्स किस लिए होते हैं वो अभी बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का तो आपको पता ही है, जैसे आप फाइल 1 में एंटर कर रहे हो और फिर जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो द कीबोर्ड बफर में फ्लश ऑन टू द मतलब डिस्क फाइल में, एक्चुअल फाइल में, या फिर मतलब ये तो कंट्रोलर कीबोर्ड का ही काम हो सकता है, अभी कीबोर्ड का कंट्रोलर ही काम हो रहा हो, लेकिन जब आप इसको सेव करोगे देन इट हैज टू बी सेव्ड ऑन द डिस्क। ओके, सो अगेन इंटरप्ट विल गो, दिस फाइल विल गेट सेव्ड ऑन द डिस्क। ओके, और हम हार्डवेयर इंटरप्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। Suppose P1 process is running on the CPU. It is in running state. ये स्टेट डायग्राम आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला ही है, तो ये स्टेट डायग्राम, आप प्रोसेस स्टेट डायग्राम आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, सॉरी एक लेक्चर के बाद में। तो ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम में क्या है? रेडी स्टेट मीन्स सपोज these processes are there in main memory, means they are ready to run. They are there in main memory means they are ready to run. So their state is ready state, current state is ready state. Okay, and here scheduler is there, scheduler that is part of kernel. Scheduler is there, it will pick up one process from the this ready queue and schedule it on the CPU. Suppose it picks up this P1 and schedules it on the CPU, so P1 is in running state. Okay, now suppose P1 at some point of time it requires the printer and printer is busy.
it requires the printer and printer is busy. Okay, so it will, or any for any IO device, suppose it is busy, जैसे कि आप printer भी अभी ठीक है, printer का ही ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, और any IO device that is suppose busy, so it will the CPU will switch it to blocking state, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में whenever IO device is not available, कोई भी OS हो, कोई भी मल्टी प्रोग्रामिंग OS हो, it will switch to blocking state. ये तो रखना ही पड़ेगा हमें प्रोविजन, है ना. एंड देन द शेड्यूलर विल गेट इन्वोक्ड. अब ये जो ब्लॉकिंग स्टेट में गया, ये तो किसके कारण गया, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के कारण या हार्डवेयर इंटरप्ट के कारण. ये ब्लॉक हो गया, ये किस इंटरप्ट के कारण ब्लॉक हुआ, रनिंग स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में प्रोसेस जनरली सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के कारण ही जाएंगे. अरे मैं कोई सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करूंगा ना कि आई वांट टू राइट ऑन द प्रिंटर, आई वांट टू राइट ऑन द डिस्क, तो किसी भी कोई भी सिस्टम कॉल ही होगा. और मैंने क्या बोला था, सिस्टम कॉल का कोड आता है तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, और वो कोड एग्जीक्यूट होता है और अगेन यूजर प्रोसेस पे नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आ जाता है. तो अब क्या हो रहा है बेटा, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ओएस यहीं पे प्रोसेस को ब्लॉक कर दे रहा है. ये जरूरी नहीं है नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आए, ये मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, कंट्रोल मे कम बैक और मे नॉट कम बैक टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द यूजर स्पेस प्रोग्राम. जहां मैंने ये लिखा हुआ है ना, वहां लिखा हुआ है इट विल कम बैक जनरली बट इट मे नॉट कम बैक. तो मे नॉट कम बैक कब होगा, जब वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा. तो ये प्रोसेस जो है प्रिंटर की क्यू में, हर आईओ डिवाइस का अपना क्यू रहेगा. तो P1 जो है ब्लॉक हो गया प्रिंटर के लिए, ये प्रिंटर का क्यू है. यहाँ पे एक सिंगल क्यू रहता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे वैसे आप, यहाँ सिंगल क्यू रहेगा प्रोसेस का. यहाँ पे एक ही प्रोसेस रह सकता है ऑब्वियसली, रनिंग स्टेट में सिंगल सीपीयू है तो, सिंगल सीपीयू है तो, और ब्लॉकिंग में ये P1 चला गया तो ऑब्वियसली OS विल गेट इन्वोक. ये ब्लॉक हो गया तो OS पे ही अभी कंट्रोल, यूजर स्पेस तो आया ही नहीं. Scheduler will get invoked. Scheduler will select the next process from the ready queue or any other process, means according to the its algorithm. जो भी एल्गोरिथम है उससे एक प्रोसेस सेलेक्ट करके यहाँ डाल देगा सीपीयू पे. ठीक है ना, सीपीयू पे P2 रन हो रहा है बेटा, अमोघ अमोघ सीपीयू पे P2 रन हो रहा है. ठीक है. Yes, sir. अब क्या होगा कि सपोज प्रिंटर बिकम्स रेडी, P1 ब्लॉक है ना प्रिंटर पे, प्रिंटर बिकम्स रेडी. तो व्हाट प्रिंटर विल डू, इट विल सेंड अ इंटरप्ट टू द सीपीयू. ठीक है, और वो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, जो भी आईओ डिवाइसेस से इंटरप्ट आते हैं वो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं. तो प्रिंटर जो है सीपीयू की इंटरप्ट पिन पे इंटरप्ट भेजेगा. ठीक है, और जैसे ही सीपीयू के इंटरप्ट पिन पे इंटरप्ट मिलेगा इन द नेक्स्ट मशीन साइकिल, अभी तो P2 के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना सीपीयू पे, सीपीयू पे P2 है ना. तो P2 का जैसे ही मशीन साइकिल उस इंस्ट्रक्शन का पूरा होगा, वैसे ही मींस एट द एंड ऑफ ईच मशीन साइकिल एक्चुअली सीपीयू चेक्स इट्स इंटरप्ट पिन. ओके, तो उस मशीन साइकिल के बाद जैसे ही इंटरप्ट पिन चेक करेगा, इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ P2 and control goes to interrupt vector routine inside the operating system. CPU changes its mode from ordinary to privileged, and that interrupt vector routine will get executed inside the operating system in kernel space. ये कर्नल स्पेस जहाँ पे अमन के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कर्नल स्पेस में. एंड the OS will recognize this thing that this printer becomes ready and in its queue P1 process is there. So what OS will do, it will switch this process P1 here in the ready state because printer becomes ready. Now OS will invoke the scheduler also. OS will invoke the scheduler also. अब scheduler का मर्जी है कि उसका कैसा प्रोग्राम लिखा हुआ है, कि whether it will run P2 itself or it will switch P1 on the CPU. ये scheduler पे डिपेंड करेगा कि वो P2 को ही रन करता है या P1 को स्विच करता है. ठीक है, वो आगे का डिसीजन शेड्यूलर का है, मतलब जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग काम होगा.
तो ये हार्डवेयर इंटरप्ट है बेटा। जैसे एक एग्जांपल मैंने टाइमर का दिया था, टाइमर में सपोज हमारा यहाँ शेड्यूलर जो है ये राउंड रॉबिन शेड्यूलर है, मतलब 10 टाइम यूनिट्स इनको देता है। तो ऑब्वियसली जैसे ही 10 टाइम यूनिट्स पूरे होंगे, इंटरप्ट फ्रॉम द टाइमर विल कम हियर टू, interrupt will come, P1 is running on the CPU, interrupt will come to the CPU, okay, it will recognize that interrupt and it will change its mode to privilege mode and control is transferred to operating system. Operating system switches this process P1 due to timer interrupt, it will switches this process P1 to the ready state and switches the next process here. Means it will invoke the scheduler, round robin scheduler, and it will switch P2 here. Okay, again after 10 time minutes timer interrupt will be there, it will get by the CPU and switching will take place. Okay, so एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन आंसर का सेट दूंगा मैं आपको, जो गैल्विन के ही क्वेश्चन आंसर है एक्चुअली। क्वेश्चन गैल्विन में है, आंसर मतलब कई एडिशंस के क्वेश्चन आंसर्स का सेट है वो। तो उसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय, सर वो टाइम, चलो ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन ही डिस्कस करना है कल। उसके बाद में बुक से थोड़ा बहुत पढ़ाना है कल, उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। क्यों बेटा? सर असाइनमेंट वो तो देने हैं मुझे, मतलब वो आपको नहीं देने, वो मुझे देने हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर दोनों होंगे उसमें, वो आपके पढ़ने के लिए रहेगा। हाँ ठीक है सर। और विशेष किसका फोटो लगाया तूने? सर पंकज त्रिपाठी। कौन है ये, नेता है क्या? नहीं सर, एक्टर है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं कुछ भी। सर हीरो है सर, आपकी तो बोल रहे थे। हीरो लग रहा था, करके हीरो बोला था मैं। अरे सर आप चिंता मत करो, आपसे अच्छा नहीं है। चलो वो तो आने पे ही पता लगेगा तुम्हें, आ जाओ फिर। कर ली मैंने डाउनलोड, बाय। बाय बाय सर। नमस्ते। बाय सर। राम राम।